کہ آج مجھے راز نہیں آتا۔ پاپا، اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں گے تو میری زندگی کا ایک ادھورا خواب پورا ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تصور کروں گا۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں روشن خالہ کہ ماں باپ بچھڑ بھی جائیں تو انہیں واپس مل جاتے ہیں۔ اب آپ شہریاری کو دیکھ لیجیے، اپنا باپ بھی ہے، محسن ماموں کی محبتیں شفقتیں سبھی کچھ اس کے لیے۔ زرداج مامی بچھڑی پھر دوبارہ مل گئی، اور ایک میں اپنے باپ کی صورت دیکھنے کی آرزو بہت چھوٹی عمر میں ختم کر چکا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے، جب تک علی کے آنے کا تار نہیں آیا تھا تب تک ہمارے فرخ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں باپ کی کتنی محبت ہے۔ اب اس سے کہیے کہ چپ ہے، کچھ نہیں کہے ورنہ ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے بھی تو رونے دیں روشن خالہ، کیا ہنسنے والے روتے نہیں؟ روشن خالہ، آپ میری امی کو اکیلا تو نہیں چھوڑیں گی نا؟ نہیں بیٹے نہیں۔ دسواں ہو جائے بیٹے تو تمہاری خالہ کو لے کر میں اسی گھر میں آ جاؤں۔ آج سے تم ہماری سرپرستی کرو، بڑے باپ کے بیٹے ہو، جاؤ دنیا میں نیک کام کر کے دکھاؤ۔ آپس خالو، آپ نے امی کو بتا دیا نا؟ کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے، چیز یہ ہے کہ ان حالات میں فرخ کو گھر سے باہر دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ احسن اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کمرشل پائلٹ بنا دیا جائے۔ کیا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کی تو بچپن سے آرزو تھی کہ یہ ایئر فورس میں جائے۔ روشن خالہ، میں تو اپنی تمام آرزوؤں کو حسرتوں میں بدل چکا ہوں۔ معجزے تو ہوتے ہیں نا روشن خالہ؟ ہاں بیٹے ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم بہت گنہگار لوگ ہیں۔ اگر کوئی کرامت ہو جائے اور میرے ابو دوبارہ زندہ ہو جائے تو پتہ نہیں ان سے کیا پوچھوں گا۔ میں پوچھوں گا کہ مسخرہ تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، مگر آپ تو مسخروں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نکلے۔ جب جیتے تھے تو مر جانے کا گمان ہوتا تھا، اور اب جب واقعی میں مر چکے ہیں تو چاہنے والے سوچ رہے ہیں کہ شاید سروائیورز کی لسٹ میں ان کا نام ہوگا۔ ابھی تم نے شک ہے کہ تم میرے گھر آ گئے، تو خدا کا کرم ہے کہ تم اور راہی بچ گئے۔ ہاں ارون صاحب، اسی کو کہتے ہیں کہ خدا رکھے اس کون سے ان دو اطالوی مسافروں کو کیا پریشانی تھی، کیا اجلت تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا، میں نے بھی آخر مجبوراً اٹھا کے اپنی سیٹیں ان کو دے دی۔ جہاز کی کیا رپورٹ؟ سبوتاژ بالکل کلیئر۔ مجھے بتاؤ کہ وہ باپ کی موت کے بعد شہر کا کیا حال ہے؟ لاسٹ، ڈسلوژنڈ، بہت لگی ہوئی۔ میں جانا چاہتا ہوں اس کے پاس تعزیت کرنا۔ ہاں کھویا یہ کسی تم نے پاکستان اپنی شہرت کی اطلاع بھیج دی؟ کیا اطلاع بھیجوں ہارون صاحب؟ پاکستان والوں کو میری موت کا یقین تو آ سکتا ہے، اب میری زندگی کا یقین دلانا ان کی موت کا سبب بن جائے گا۔ کیسے بھی خیر، فی الحال میرا اور رائی کا جانا مجبور ہے، مشکل ہے، جب تک سے نارمل نہیں ہو جائے، اور اب اگر جاؤں گا بھی تو شاید اس وقت یہ بقا جاؤں گا۔
مرنا اتنا سہل نہیں ہے اور جینے کو اب دل نہیں چاہتا احسن بھائی. میں تم سے تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں محسن. اگر میری ضرورت ہے تو میں کراچی آ جاتا ہوں. بالکل نہیں, میں گھر آ گیا ہوں. مائلڈ سا انجائنا کا اٹیک تھا. آغا جی تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہی ہے. محسن میں عابد بول رہا ہوں. یہ احسن بھائی بہت پریشان ہیں, فون پہ بات کر رہے تھے. ہاں یہ سب ٹھیک ہے, بس تم اپنی صحت کا خیال رکھو. زرتاج تو آج کراچی روانہ ہو گئی ہوں. میں ابھی ابھی ٹکٹ دے کر آیا ہوں. افشاں کو بھجوا دوں؟ نہیں عابد بھائی نہیں, حسنہ اکیلی رہ جائے گی. اتنے پھلانے کی کیا ضرورت تھی زرتاج؟ لوگ پرسا دینے کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بازار میں پھلا اچھے دکھے تو خرید لیا. پا کیسی باتیں کرتی ہو زرتاج؟ بھلا موت کے گھر میں پھل پھلاری کا ذکر کیسا؟ یہاں تو دو نیوالے حلق سے اترنا مشکل ہے. میری جان, اماں جان, میری اماں جان, میری ماں حکم دی تو میں افشاں کو کراچی لے کے جاتی. کون ہو تم؟ میں افشاں کی ماں ہوں, آپ کی بہو زرتاج. افشاں کی ماں ہو؟ جی ہاں. افشاں کی ماں تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی. جھوٹی کہی تھی. آئی اماں جان تو بالکل ہی دیوانے ہو گئے. ارے ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ خدا نہ کرے کہ وہ دیوانی ہو. ان کی طبیعت خراب ہے, کچھ ان کے دکھ کا بھی اندازہ ہے تمہیں زرتاج؟ تو کیا میں ٹارچر کرنے کو یہاں بیٹھی ہوں؟ کچھ خبر بھی ہے آپ لوگوں کو محسن سے کراچی میں کیا گزر گئی؟ محسن اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں گے. تمہارا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ محسن بالکل خیریت سے ہیں. شوکت بھابھی بات تو کرنے دیجیے. دیکھو زرتاج, اس وقت افشاں کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے. فروخ اپنی نوکری کے چکر میں مارا مارا پھر رہا ہے. افشاں چلی گئی تو حسنہ بالکل تنہا رہ جائے گی. میں تو سنی آپا فروخ کو ایئر فورس میں نوکری مل گئی. ارے نہیں ملی بھائی, بلوا آیا تھا, اب اس کی بھی کوئی امید نہیں رہی ہے. روشن آپا, میں غلط بات کری نا تو 100 جوتے میرے سر پہ مار لو, مگر ایک بات سنو آپ میری. کہو. ایک بات صاف صاف سن لو زرتاج, جب تک محسن نہیں کہیں گے افشاں یہاں سے ہل نہیں سکتی. شوکت بھابھی بات تو سننے دیجیے. لیکن روشن بھابھی آپ بھی تو میری بات سنیے. ساری ذمہ داری آپ پر آئے گی, میں بتا دیتی ہوں. احسن نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. کیا بتایا احسن بھائی آپ کو؟ خدا کے لیے آپ دونوں خاموش رہیے, کچھ اماں کا خیال کیجیے. ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے. میں روشن آپا سے بات کر رہی ہوں, آپ بیچ میں ٹپک پیاری بن کے نہیں بولیں. جو کچھ بات کرنی ہے میرے سامنے کرو, میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی. ہاں تو آپا میں یہ بول رہی تھی کہ 17 سال تک محسن افشاں کو پلٹ کے نہیں پوچھے تو آپ لوگوں کو شکوا تھا, محسن بیٹی کو پوچھتے نہیں. اچھا, تم سے شکوا کرنے کون آیا تھا؟ ان کو چپ کرا آپا, میں بہت بری عورت ہوں. خدا کے لیے شوکت بھابھی آپ اماں کو لے کے دوسرے کمرے میں چل جائیں. لیکن میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ یہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ اچھا ہے بھائی, میں ہی یہاں سے جاؤں, نہ ان کی بے تکی باتیں سنوں گی اور نہ میرا دماغ خراب ہوگا. ہاں تو آپا میں یہ بول رہی تھی, اب 17 سال کے بعد محسن کے دل میں افشاں کی محبت جاگی ہے. میں بولی تو اب آپ لوگ بتاؤ کس واسطے روک رہے ہیں افشاں کو آپ لوگ؟ تمہارے سر کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. 4-8 دن کے بعد عابد خود افشاں کو کراچی چھوڑ آئیں گے. افشاں کراچی نہیں جائے گی. اللہ اللہ کرنا, پرایا مال اپنا, چوری سینہ زوری. سن لیا روشن آپا آپ, میں بولی تھی نا افشاں کو ساتھ لے جانا اتنا آسان نہیں. افشاں کے باپ کے واسطے سونے کی چڑیا کو کون چھوڑتا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ باپ ترس رہا ہے بچی کی صورت دیکھنے کے واسطے. آپ لوگ میرے کو جواب دو, افشاں کراچی کیوں نہیں جا سکتی؟ محسن نے خود منع کیا. میری یہاں سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. ہاں فون آیا؟ ہاں. اچھا محسن ممتاز صاحب, اب بولنا میرے کو افشاں کے معاملات میں پڑھنے کو. سوتیلی ماں ہوں نا, سوتیلی رہوں گی. خدا حافظ. کہاں جا رہی ہو تم؟
शाम की फ्लाइट है तुम्हारी। पूरा लाहौर शहर मेरे शौहर के दोस्तों से भरा हुआ है। थैंक यू। बक्का गाड़ी लगवाओ। कोई जरूरत नहीं है हुक्म है काम देने की। 2 पावा मेरे, मैं खुद चली जाऊंगी। अफशा, बाप तड़प रहा है तुम्हारी सूरत देखने के वास्ते, और ये जो तुम्हारी ददियाल वाले हैं ना, तुमको तुम्हारे बाप का दुश्मन बना के छोड़ेंगे। याद रखना वरना मेरी बात। जरदार भाभी प्लीज आप मेरी बात तो सुने। सुनना सुनाना रखो सब अपने भाई के साथ। मैं तो हूँ अफशा की सौतेली माँ। माफ करो मेरे को। जरदार भाभी कमाल करो ज़रताज भाई, जब तक अफशा का दिल हाथ में नहीं लोगी ये काम कैसे हो सकता है? तुम्हें अफशा को छोड़ के लाहौर में नहीं आना चाहिए था। मजीद भाई, मेरे ससुराल वाले कोई इतने कच्चे गोलियां नहीं खेले। आप समझते हैं अफशा को साथ लाना कोई बहुत आसान काम था? सारा प्लान अपसेट होके रह गया। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ज़रताज कि ये काम गुस्से से नहीं चलेगा। वो लोग कुछ बोले होंगे, तुम लड़वा के वापिस आ गई। बीबी, ये काम प्यार और मोहब्बत से होते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। मेरे को भी अब तो गुस्सा देख तू कैसा नहीं जाते अफशा को लोग कराची। ठीक है, माइल अटैक था, बिल्कुल ठीक है। तुमसे ज्यादा काम तो शहरयार ने कर लिया। जी ऐसा मुट्ठी में मोहसिन का दिल लिया है कि बस। जिस दिन से मैं कराची आया हूँ ना, तुम लोग परेशानी में गिरफ्तार हो गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे कराची लाहौर से अच्छा है ना? यस, कराची इज ए बिग सिटी, बिगर देन लाहौर। मजा आया ना? ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े मॉडर्न शहर में आ गया। दादी जान की वजह से आपको बहुत अफसोस हुआ होगा ना? हाँ, उनकी सूरत तो आंखों के सामने से हटती नहीं। फर्रुख भाई कैसे है? फर्रुख बहादुर आदमी है, रोए तो बहुत थे मगर काम भी करते रहे। उनका फ्लैश हुआ था वो शायद फर्रुख भाई के अब्बू थे? हाँ, फर्रुख के अब्बू थे। और सितम जरीफी देखो, फर्रुख बेचारे ने उनको देखा तक नहीं था। और तुम्हें मालूम है, फर्रुख पायलट हो गए। अच्छा? हाँ, वैसे वो है बहुत इंटरेस्टिंग, हमेशा हंसाते रहते हैं। मुझे हंसाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। फिर तो मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। वैसे शायद आप इतने बुरे नहीं हैं जिससे जो शहरयार भाई हैं। क्यों? वो हमेशा लव स्टोरी के हीरो की तरह रोती हुई सूरत लेके फिरते हैं। वो हंसे नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। तो वो हैंडसम होते तो क्या करते? इतने बुरे भी नहीं है। वो छालिया वाला भरा हुआ बच्चा देखा है आपने? कौन सा? वही जैसे दादी जान के पास होता है। दादी जान के पास है। हाँ, वैसी ही शक्ल है शहरयार भाई की। सुबह जब घर से चली, लज्जत एक दर्द प्रगुप्ता में फरू, उसकी कलियों से खिली आंखों में तितलियां, तितलियों में नशा व एहसास की उड़ती देखो। मन के सहरा में किसी डूबती आवाज की सूरत, उसे महसूस करूं। और जब रात गए लौटाऊं, उसकी आंखों की चमक के लिए तरसूं। मैं तरसता ही हूं। शहरयार, मम्मा, अफशा मुझे इतनी अच्छी लगती है कि उसको तसव्वुर ने मुझे शायर बना दिया है। वाह वाह वाह, शायरी कर रहा है मेरा बेटा, बहुत लायक है। मम्मा, आप उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? आप यकीन जानिए कि ना मेरा दिल कहीं और लगता है, न अकेडमी में। उससे कुछ भी नहीं हो सकेगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगी। दीवाने हो गए बाबा, दिमाग चल गया तुम्हारा। हाँ, पावा पड़े आजकल के छोकरों के। वही एक जरा सी बात किए तो रोमियो, मायवाल, रांझा क्या कैसी बन जाते। शायरी कर रहे हैं, सवालों में बातें कर रहे हैं। ऐसी आसमान से किधर की आई बाबा वो? हाँ, पढ़ाई में दिल लगाओ भी अपना। शेरा हत्या छोड़ो शिकारियों के वास्ते। हो भोला है मेरा शहरयार पाशा।
अफशा, वो तो शेर की खाला है। अरे चल हट, खामखा बच्ची के पीछे पड़ा रहता है। अरे फर्रुख, बेटे तुम वहां कैसे गए? मैंने तो ये सुना था कि तुम 2-3 महीने से पहले आ ही नहीं सकते हो। मेरी ट्रेनिंग भी तो साथ साथ हो रही है ना फूफो। अच्छा हाँ हाँ। वैसे मैं एक खास बात कहने के लिए आया हूँ आपके पास। खास बात? कहो बेटे। आप जितना वक्त अम्मी के साथ गुजारें अच्छा होगा। शेर की खाला का दिल बहलाने के लिए या उसना उमानी का दिल बहलाने के लिए? बदतमीज। पर तुम्हारे भी निकल आए रशीदा। अच्छा वो हमारी स्टूडेंट किधर है? अच्छा हमीदा। हाँ मुश्ताक, हमीदा कहाँ है? हमीदा अंदर है अम्मी। हमीदा, ओ हमीदा, अरे जरा देखो तो सही, फर्रुख आया है। जी अम्मी। ये तो 2.5 छूने आते हैं। देख लो क्या कह रही है हमीदा, देखा तुमने? फर्रुख तुम घर गए? अब जाऊंगा, घर में दीवारें बहुत हो गई। क्या मतलब दीवारें बहुत हो गई? इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। किधर जाओ फिर? क्यों, क्या कोई पर्दा करने लगा है? भाई वो अफशा के वालिद साहब है ना, वो ये नहीं चाहते कि मैं अफशा के करीब से भी गुजरूं। तो फिर मोहसिन लेके क्यों नहीं चले जाते अपनी बेटी को? आ गए। इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। अभी पीरो मुर्शिद के यहाँ तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। वो जरा बात सुनना। अच्छा हाँ हाँ अभी आ जाओ। ये पानी है और ये है शक्कर। चाय बनाओ या शरबत, सिर्फ यही डालना और कुछ बनाना नहीं। देखिए तुमने पीर साहब ही करामा। हाय कैसा आप ही आप तुम्हारे कदमों में खिंचा चला रहा है। सुनो, तुम यही बता रहे हो ना कि चाय बनाऊं या शरबत बनाऊं तो यही चीनी डालूं? बिल्कुल और यही पानी पड़ा बिल्कुल है। आया हमीदा, क्या बस अच्छी कमाल हो गया। इधर तो तावीज मैंने दरवाजे की चौखट पे दबाया था, फट से फर्रुख आ गया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जाओ तुम बैठो। अच्छा अरे ये बोतल तो यहाँ रख दो, जाओ जाओ। लगता है मेरे जाने के बाद तुमने किताबें खोल के भी नहीं देखी। अरे भाई ये क्या? फुप्पो, क्या बात है? फुप्पो जरा इधर तो आइए। फुप्पो मिठाई तो खिलाइए। मिठाई? किस बात की मिठाई बेटे? लगता है हमीदा की मंगनी हो गई है। मंगनी हमीदा की? ठीक कह रहे हो बेटे, अंगूठी तुम्हारे हाथ में है और मंगनी हो गई बेचारी हमीदा की। पकड़ के फर हो गई, अम्मी देखे छुपा रहे। देखिए मैं फर्रुख अंगूठी छुपा रहे हैं। छुपाना तो पड़ेगी। नहीं बेटे, छुपानी क्यों पड़ेगी? हम तो खुश होने वालों में से हैं। ताया अब्बा के इंतकाल के 2-4 रोज पहले कुछ हुआ जरूर है। अरे तो क्या हुआ अगर मंगनी हो गई? अभी रोशन की 2 प्यारी प्यारी सी बेटियां मौजूद हैं, शौकत की फरहत है। हाँ, अफशा का मामला जरा टेढ़ा है। जिसके बाप को मोहसिन सारी जिंदगी जलील करते रहे हो, उसकी बेटी से रिश्ता होना नामुमकिन बात है। और अगर हो भी गया तो मोहसिन किसी इंतकाम के लिए ही रिश्ता करे। मेरा अली, मेरा भाई, मेरा शहजादा जैसा अली पता नहीं कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। पता नहीं मोहसिन का ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे अली ने जो जन्म भर के लिए बेघर होके मर गया अली। अब अली गया है तो कोई उसका नाम लेने वाला तक नहीं रहा। और हम ऐसे गैर हुए कि अपने फर्रुख की किसी खुशी में शरीक तक नहीं हो सकते। आगा जी का इंतकाल हो गया, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा भला फर्रुख में क्या इंटरेस्ट था जो आप लोगों ने हर बात मुझसे छुपाई? सर तक गिनती, पांव तक मिनती, सारी जिंदगी गुजर गई ससुराल को मैका समझते और ये सिला मिला है। अरे अगर आप लोग मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझते थे तो कम से कम खैर खा समझकर ही शामिल कर लिया होता। शौकत, आगा जी मरहूम ने आप से मशवरा लिया था, मुझे तो खबर भी नहीं थी। अच्छा, तो रोशन भाभी को पता था? इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। शौकत भाभी, आप हमसे हमारे बच्चों की कसम ले लीजिए, हमें इस बात की हवा भी नहीं लगी कि फर्रुख का निकाह अफशा के साथ हो गया।
आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि आप सबको पता था और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे छुपाया? क्या मैं फर्रुख और अफशां की दुश्मन थी? इसका अंदाजा आपको हमसे बेहतर होगा, इसलिए कि आप आबिद की बहन हैं। रोशन भाभी, क्या बात कर रही हैं? ओहो, अपनी कहती जाओगी या मेरी भी कुछ सुनोगी? इस निकाह का इल्म न एहसन को था और न रोशन को। आया समझ में? अगर कजन्स में किसी की किसी से बिल्कुल नहीं बनती ना, तो वो अफशां और फर्रुख है। नहीं महमूद भाई, मेरे ख्याल में तो फर्रुख भाई बहुत अच्छे। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि फर्रुख भाई बुरे? फर्रुख भाई सबके लिए अच्छे हैं, सिवाय अफशां के। बुखार कुछ कम हुआ बिटिया? कहाँ दादा, बल्कि और तेज हो गया है। रोशन आप अब कोई फर्क नहीं है। रोशन बीबी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए दिनू दादा। मैं अब इस घर से जा रहा हूँ बीबी। क्यों? बस मेरा आबो दाना उठ गया, यही तो होगा। लोग मुझे नमक हराम कहेंगे, ठीक है, गाली खा लूंगा, पर मैं तुम्हारे हाथ से तनख्वाह नहीं लूंगा। दीनू दादा, ये ठीक है हम इस घर की बेटी हैं, लेकिन आबिद तो आगा जी के बेटे की तरह है, और एहसन भाई और आबिद में कोई फर्क तो नहीं है। ना बेटी ना, रिश्ता आप तुम्हारे हिसाब से गिना जाएगा। एहसन मियाँ और उनकी दुल्हन सरकार का गिरस्ती संभालते तो और बात थी। वो अगर मुझे धक्के देके भी इस घर से निकालते ना, तो मैं ये चौखट छोड़ के नहीं जाता। बाप अपनी बेटी को कुछ ना दे सके तो ना सही, उससे लेना भी नहीं चाहिए। मैं अब तुम्हारे और आबिद मियाँ के हाथों से कुछ भी नहीं लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप दीनू दादा? दादा, क्या आप एक छोटे बेटिया को भी छोड़ के जाएंगे? बेवा बहन के बच्चों को पालना ना होता ना बिटिया, तो फिर क्या था? ये पेट का दोजख तो मनमानी नहीं करने देता ना। गया मेरा सरकार, मेरे नाज उठाने वाला, खुदा उसके बाग को सलामत रखे। दीनू ये सब कुछ देखने के वास्ते जिंदा क्यों रह गया? दादा, कभी कभी आएंगे ना? जरूर आऊंगा बिटिया, जरूर आऊंगा। तुमको देखने, अफसान बिटिया को देखने जरूर आऊंगा। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे। चलिए। मेरा बाप मर गया, मुझे खबर तक नहीं की। तुम्हारी हालत ही ऐसी नहीं। जहन्नुम में गई मेरी हालत आबिद भाई। आगा जी मुझे दोबारा तो नहीं मिल सकेंगे। मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे और मेरे बड़े भाई से पूछे बगैर कर दिया गया। मैं अली का दुश्मन था, आप लोगों को तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ नहीं छीना था। इतनी बड़ी सजा क्यों दी आप लोगों ने मुझे? शुक्र है इतने सालों के बाद तुमने अफशां को बेटी तो कहा। यही लफ्ज सुनने का अरमान लिया आगा जी तो इस दुनिया से चले गए। मैंने अपनी बच्ची अपने माँ बाप के सुपुर्द की थी, आप लोगों के हवाले नहीं की थी। अगर हम लोग गैर हैं तो आओ बैठो इस घर में और लो आगा जी की जगह। फर्रुख के साथ अफशां के निकाह का फैसला आगा जी ने किया था। इस फैसले को न तुम बदल सकते हो न हम रद्द कर सकते। मैं अपनी बेटी की तकदीर ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता जो मुझसे और मेरी बेटी से नफरत करता हो। अगर आपको फर्रुख इतना ही प्यारा है तो ब्याह दीजिए अपनी बेटी। मैं मसलहतन खामोश रहा था, क्योंकि भाई बहन के मामले में मैं दखल देना नहीं चाह रहा था। सरपरस्ती की छांव अभी बाकी है मोहसिन। आज मुमानी अम्मा हवास खो बैठी, कल अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक भी हो सकती है। उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम उनके फैसले रद्द कर दो? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अफशां फर्रुख से नफरत करती है। अफशां बेटे, तुम अपने निकाह की अंगूठी मुझे दोगी? बेटे, ये अंगूठी मैं तुमसे वापस नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मोहसिन भाई जब आए तो ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में न देखे।
मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह ये अंगूठी मेरे पास तुम्हारी अमानत होगी। अफशा, अफशा, अफशा को बुखार है। मैं उसे गोद में उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगा। अफशा, मेरे साथ नहीं चलोगी बेटे? तेरा बाप तुझे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए बेटे।